Hello everyone, this is me Noor here from Mentor Academy. We are heading towards our lecture number 18, which is all about future continuous tenses. What is future? Future is all about your prediction about your मतलब आपका मुस्तकबिल. आप क्या सोचते हैं कि आने वाले कल में आपके साथ क्या होगा, आप क्या करेंगे. Whatever you are thinking about, whatever you are tense about, most probably we are tense about our future. एंड कंटिन्यूटी जो भी काम जारी हो प्रोसेस में वो हो रहा हो उसको प्रेजेंट करता है. बट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस का मतलब ही ये होता है कि एक ऐसा एक्शन जो कि कंटिन्यू है लेकिन फ्यूचर में, या फिर कंटिन्यू होगा फ्यूचर में, बिकॉज ऑल द थिंग्स वर not all the things will be not like planned sometime, but we planned ourselves, our career and our daily routine also. So this is how we're going to make the tenses. First of all, to make the affirmative of future continuous, you use this formula for it: subject, will or shall. Mostly we are using will for it. Nowadays we are not using shall, because this is the this is British English. That is the reason I am writing here. कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोनों अगर आ जाए तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना. आप लोगों ने समझ जाना है कि ये जस्ट विल और शेल एक ही सेम ही चीज होती है. एंड देन बी एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और यू कैन मेक फर्स्ट फॉर्म and write ing in the end of the form, so you can easily make the fourth form of the verb. And then the object. So for the affirmative one, in future continuous, the first example is she will be doing a job. वो जॉब कर रही होगी, वो जॉब कर रही होगी. ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर में कंटिन्यूटी भी दिख रही है आपको. कर ली होगी नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कर रही होगी. राइट कि मैं ये काम समटाइम वी जस्ट प्रिडिक्ट आवर फ्यूचर कि मैं 10 साल बाद बाहर मुल्क होऊंगा या बाहर मुल्क में काम कर रहा होऊंगा. सो दिस इज हाउ पीपल डू. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल फॉर फ्यूचर कंटिन्यूस इज आई शिल बी वर्किंग वेरी हार्ड. मैं बहुत मेहनत कर रही होंगी या कर रहा होऊंगा इन द फ्यूचर. राइट, अभी वो काम हुआ नहीं है, हम सिर्फ एक ख्याली प्लाव यू कैन से बना रहे होते हैं अपने माइंड में. And the third example is you will be enjoying summer or summer vacation, you can say कि तुम या आप, you can use both meaning for it. You will be enjoying summers, आप summer vacations enjoy कर रहे होगे. You will be enjoying summers, you will be enjoying your brother's wedding, you will be enjoying the school farewell. You can make your own sentences by the help of this kind of examples. These are the affirmative one. You can just explain your statement, just simple sentence. But in the negative one, आप किस तरह से इनको कन्वर्जन की फेस पर लेकर जाओगे, किस तरह से इसको कंफर्मेशन के लिए और मतलब प्रॉपरली डिक्लाइन कर दो कि नो, ऐसा नहीं, मैं 10 साल बाद बाहर मुल्क नहीं होऊंगा. राइट, या मैं 10 साल बाद बाहर के मुल्क में काम नहीं कर रहा होऊंगा. So this is how we're going to make the negative one. For negative one, we will apply the same formula for it. We just need to put not before be, right? Will shall के बाद आपको not use करना, then you will use be. And for this, we are also using the same, verb की fourth form ही and then object. But we are using not after will or shall. First example for the negative one in future continuous is mother will not giving chocolates. अम्मी चॉकलेट्स नहीं दे रही होंगी. राइट, आप इसको कट करके चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं. यू कैन राइट, यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस बाय द हेल्प ऑफ इट. एंड द सेकंड एग्जांपल फॉर नेगेटिव वन इज, नेगेटिव इज pretty easy because you just need to put not in it before be. And then we will not be enjoying the food. हम खाने से लुत्फानंदोज नहीं हो रहे होंगे या खाने के मजे नहीं ले रहे होंगे. यू कैन मेक योर सेंटेंस. दिस इज हाउ affirmative and negative make in future continuous tenses. कंटिन्यूटी भी दिखा रहे हैं हम और हम ख्याली प्लाव भी बना रहे हैं फ्यूचर के बारे में कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही होंगी. आफ्टर दिस हम क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं मोस्टली कि भाई क्या मैं ये करूँगा, कर रहा हूँगा, क्या मैं फेयरवेल में डांस कर रहा हूँगा कल. हम इस तरह से अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे होते हैं, कंफर्म कर रहे होते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए.
we have to make the interrogative one. We have to tell to somebody कि किस तरह से हम अपनी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी से क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन करने को उस टेंसेस के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए फॉर्मूला सेम ही है, जस्ट यू ऑल नो वी आर मेकिंग अ लॉट्स ऑफ वीडियो कि आप किस तरह से फॉर्मूले को ग्रिप करते हो, किस तरह वाइस वर्सा लेकर आते हो, सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाता है, right? So will or shall can be used first of all in interrogative one. In future continuous, shall after will or shall you can use subject and then be, right? सब्जेक्ट के बाद बी आएगा यहाँ पर, वहां पर नॉट आ रहा था, राइट, बट फिर उसके बाद बी आ रहा था, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद बी आएगा इन द नेगेटिव वन। आफ्टर दिस वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, बट डोंट फॉरगेट टू mark the question mark in the end of the sentence because it shows the interrogativity or the sentence symbolism. So the first example for interrogative sentences is, will you be going to the school tomorrow? क्या तुम कल स्कूल जा रहे होगे, राइट, या कल स्कूल होगे, ऐसे भी समटाइम हम किसी से पूछते हैं ना, जा रहे होगे, बिकॉज जा रहे होगे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी होगी, राइट। क्या तुम कल अपनी जॉब पर जा रहे होगे, कल से अपनी जॉब पर जा रहे होगे। These kind of sentences we gonna make in interrogative. We are making the question to another person. And the second example for future continuous in interrogative sentence is, will they be dancing at the party? क्या वो मतलब पार्टी में डांस कर रहे होंगे? क्या वो भी कहते हैं समटाइम हम क्वेश्चन के शुरू में, और हम क्या वो नहीं भी कहते ना, समटाइम इस तरह होता है कि लोग उर्दू में इस तरह कह रहे होते हैं, वो डांस कर रहे होंगे पार्टी में, राइट, और जस्ट क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है इन उर्दू तर्जुमा, जिसको कहा जाता है कि ट्रांसलेट इन इंग्लिश। तो आप किस तरह पहचानेंगे, जस्ट क्योंकि क्या तो लिखा हुआ नहीं होगा, आप कहेंगे ये क्वेश्चन तो नहीं लग रहा, बट जब आप मार्क देखेंगे क्वेश्चन मार्क, सो यू विल आइडेंटिफाई इजीली कि दिस इज द इंटरोगेटिव वन, राइट। सो दिस इज हाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस वर्क एंड वी मेक सेंटेंसेस. This is how you can practice by your own, make your own sentences and make it more easier. Keep likes our video and don't forget to subscribe our channel Mentor Academy. Thank you.